Here t is the parameter. Here t is the parameter. Hello, am I audible to both of you? Yes, sir. The second example is y square equals to 4x. That is x equal to 80 square and y equal to 280 is called the parametric form of this parabola, and here t is the parabola. Is that clear? Similarly, suppose x square by a square plus y square by b square equal to 1. This is an ellipse and its parametric form is x equals to a cos theta, comma y equals to b sin theta. Is that clear? Here theta is the parameter. Here theta is the parameter. इसमें बेटा कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ. Yes, sir. Now question arises that how can we find the derivative of a parametric functions. तो देखो अब अपन देखते हैं derivative of parametric functions के concepts, है ना. How to find derivative of a parametric functions. तो हमने सपोज कर दिया लेट y equal to ft and y equal to gt are two functions, are two, let y equal to ft and y equal to gt are parametric form of function y equal to fx. Is that clear? अपना function y equal to fx कोई होगा और अपने को सिर्फ उसका क्या पता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, एंड दैट इज y equal to ft and y equal to gt. तो देखो पहला फंक्शन बेटा आपके पास क्या है, y equal to ft. अब मुझे बताओ यहाँ पे फंक्शन f किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका t पे कर रहा है क्या. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या ले आएंगे, dy बाई dt. क्या फाइंड आउट करोगे बेटा आप बताओ, dy बाई dt, that is dy by dt of ft, that is f dash t. Is that clear? इसको वन बोल दो आप. सिमिलरली आपको देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है, g of t. तो अपन अगेन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, dx by dt. इज दैट क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, G dash T. बट अपने को चाहिए क्या, dy by dx. अपने को क्या चाहिए, dy by dx. अब आप लोग मुझे बताओ क्या मैं dy by dx को ऐसे बोल सकता हूँ, dy by dt divided by dx by dt. Is that clear to both of you? Therefore dy by dx is equal to, देखो तो यहाँ पे f dash t अपॉन, G dash T. कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes, sir. दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक. अब अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना. क्या ले लेते हैं हम लोग, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एंड उसके हेल्प से कुछ पैरामेट्रिक फंक्शंस के क्या लाते हैं, डेरिवेटिव्स. देखते हैं कैसे.
यहाँ देखो नेक्स्ट, find dy by dx if first question is x equals to a into t minus sin t, comma y equals to a into 1 minus cos t. Second one is x equals to a cos qt, comma y equals to a sin qt. Got it? Clear to both of you? क्वेश्चन विजिबल है। वन बाय वन अपन अप्रोच करते हैं कैसे करें। सॉल्यूशन इज गिवन फंक्शंस आर क्या है बताओ, x इक्वल्स टू a इंटू t माइनस 1/t, t माइनस sin t, एम आई राइट। अब मुझे बताओ x अपना किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, एम आई राइट, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, dx by dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू टी माइनस साइन टी। गॉट इट? ये देखो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलोगे, dy by dt ऑफ t माइनस साइन टी। इज दैट क्लियर? देयरफॉर dx by dt इक्वल्स, देखो a डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 and derivative of sin t with respect to t is, that is cos t. Clear? Am I right? Again, अब बताओ y की वैल्यू बेटा कितना दिया गया है, a into 1 minus cos t, differentiating on both the side with respect to t, that is dy by dt equal to dy by dt of a into 1 minus cos t. Is that clear? A is constant, so dy by dt of 1 minus cos t. Is it clear to both of you? Therefore, dy by dt becomes, बोलो क्या होगा, a and derivative of 1 is 0 minus derivative of cos t is, that is minus n. आप बोल सकते हैं a minus minus plus sin. Is that clear? हमने dx by dt फाइंड आउट कर दिया और dy by dt फाइंड आउट कर दिया। Therefore, dy by dx इक्वल टू क्या होगा बताओ, dy by dt अपॉन dx by dt। क्लियर? dy by dt की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, a sin t। dx by dt की वैल्यू कितनी है अपने पास, a into 1 minus cos t। a into 1 minus cos t। इज दैट क्लियर? देखो ये a और ये कैंसिल हो गया, sin t को आप बोल सकते हो 2 sin t by 2 into cos t by 2 and 1 Yes, minus sir. cos 2 is written as 2 sin square t by 2। तो देखो 2 sin t और ये, therefore dy by dx क्या हो जाएगा, cot t by इज दैट क्लियर? yes sir। Yes sir। दिस इज द आंसर। कैसे बेटा अप्रोच करोगे ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? yes sir। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। गिवन फंक्शंस आर, इसको दो पार्ट में कर देते हैं ताकि हो जाए ये। देखो x की वैल्यू क्या दी गई है बताओ, a cos, therefore dx by dt लाओगे आप, तो dx by dt क्या होगा, ये देखो a
cos QT का क्या हो जाएगा 3 cos square t into minus sin t, am I right? Similarly y इक्विवेलेंट देखो क्या दिया गया आपको a sin QT, तो dy by dt क्या होगा बताओ a and sin QT का क्या हो जाएगा 3 sin square t and derivative of sin t is cos t, तो dy by dx क्या होगा ये बताओ dy by dt अपॉन dxy क्या हो जाएगा dy by dt की वैल्यू क्या है देखो 3a sin square t into cos t अपॉन माइनस 3a sin t into cos square t, तो देखो 3a गया sin t गया cos t गया, क्या बचा अपने पास माइनस ऑफ tan t, therefore final answer is dy by dx is minus of tan. Is that clear? Yes. इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग, तो हम शॉर्ट आउट करेंगे, बट आई होप कि समझ में आना चाहिए, इजी टॉपिक है ये, आगे कंटिन्यू करें। Yes. गॉट इट, आगे कंटिन्यू करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx if find dy by dx if x equals to a into cos t plus log tan t by 2 base e, comma y equals to a sin t, a sin t। चलो solution is given that a into cos of t plus log tan t by 2 base e, am I right? Is that clear? क्या लॉग है आप बताओ, इस डेटा के बेसिस पे आप क्या लाने जा रहे हो dx by dt, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो dx by dt, therefore dx by dt is क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर, dy by dt of cos t plus log tan t by 2 base e, is that clear? This implies dx by dt equals to a into derivative of cos t is that is minus sin plus log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x that is 1 by tan t, tan x का डेरिवेटिव sec square t by 2 into t by 2 का डेरिवेटिव हाफ। Is that clear? Is it clear to both of you? Yes, sir. अब अरेंज कर देते हैं, तो देखो तो dx by dt को आप ऐसे बोल सकते हो क्या a into माइनस ऑफ साइन टी प्लस, देखो ये जो tan t/2 है, tan t/2 है, इसको आप बोल सकती हो cos t/2 अपॉन sin t/2, नहीं, और यहाँ देखो ये जो sec स्क्वायर t/2 है, इसको आप बोल सकते हो cos स्क्वायर t/2 into 2, गॉट इट? ये देखो ये cos t/2 है, इसका एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा क्या, therefore x by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 into cos, this implies dx by dt is equal to क्या हो जाएगा a into माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी,
Yes. है ना, बोल सकते हो ना। अगले स्टेप Yes. तो इसको बोल सकते हो क्या, dx by dt is equal to a into minus of sin square t plus 1 upon sin t, or you can write down a into 1 minus sin square t upon sin t, or you can say a into cos square t upon sin t. Is that clear? dx by dt Yes. क्या तुम्हें, अब क्या लाओगे आप, dy by dt. देखो ऑल्सो y की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, a sin t, देयरफॉर Yes. dy by dt, ये तो सिंपल है, इजीली आ जाएगा ना, a cos t, a Yes, sir. sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t, देयरफॉर dy by dx. dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy by dt अपॉन dxy dt। तो देखो dy by dt की वैल्यू कितनी है, a cos t, और dy by dx by dt की वैल्यू कितनी है, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो यहाँ पे देखो sin t आ जाएगा, ये देखो ये cos और ये cos कैंसिल हुआ, सॉरी ये a और ये a कैंसिल हुआ, cos t और cos t भी कैंसिल हुआ, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, 20. क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes. sin t अपॉन cos t को क्या बोलते हो आप, tan t। 20. मेथड समझ में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है ना। Yes, sir. कैसे अपन ने अप्रोच किया, स्क्रीन पे तुम्हारे सामने दिख रहा है, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करो, बेनिफिट जरूर मिलेगा तुम्हें, है ना। Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करें, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं। जस्ट अ मिनट यार, है ना, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, screen is visible to both of you, Kawal and Anaga, please check it। Yes, sir. ओके गुड, चलो इसको सेव करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नेक्स्ट स्टेज, जस्ट अ मिनट। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। Sir, यस बेटा, एक्चुअली अनघा का मैसेज आया है कि वो वेटिंग रूम में है. ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। अरे यार अभी वो हैंग हो गया था ना, तो मैंने शायद देखा नहीं, हाँ किया किया कंफर्म। ओके क्या, Yes. अनगा देयर इज अ नेटवर्क इशू आल्सो टुडे, Yes, sir. कुछ नेटवर्क इशू है बेटा फिर से।
हाँ सर, वो मैं उसको शॉर्ट बार बार निकल जा रही हूँ सर, पता नहीं क्या हो रहा है ये शॉर्ट आउट करो बेटा इस प्रॉब्लम को, लास्ट क्लास में भी आपका लॉस हुआ है। चलो देखते हैं। सर। मॉर्निंग से हो रहा है सर ऐसा, ओके ओके चलेगा, है ना। पता नहीं कब फाइंड से। dy by dx if x equals to sin inverse 2t upon 1 plus t square, comma y equals to cos inverse 1 minus t square upon 1 plus t square. Second one is x equals to e raised to theta into theta plus 1 upon theta. Y equals to e raised to minus theta theta minus 1 upon theta. And third one is x equals to 380 upon 1 plus t cube and y equals to 380 square upon 1 plus t. चलेगा, कवर लेना लगा। ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, है ना। अपन ट्राई करते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट x इक्वल्स टू क्या है बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो एक तो मैंने पढ़ाया है आपको, मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला ना बेटा 2 tan इनवर्स t होता है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स t होता है। इज दैट क्लियर? और अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो कुछ पल के लिए, उसका मेथड है देखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये अपने को कुछ हिंट्स दे रहा है। 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपने को कुछ हिंट्स दे रहा है। क्या हिंट्स दे रहा है कि अगर मैं t को क्या पुट कर दूं, tan थीटा। t को क्या पुट कर दूं, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t हो जाएगी बेटा। क्लियर है? और ये जो x है इसको क्या बोल दोगे आप, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसी को तो आप बोलते हो साइन 2 थीटा। गॉट इट? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई देखो 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स। एम आई राइट? क्लियर है? तो मुझे बताओ dx by dt क्या हो जाएगा, 2 into 1 upon 1 plus t square. Is that clear? Yes, sir. ये तो इजी है ना, कर सकते हो आप। ये देखो इसको 1 बोल दिया। सिमिलरली अब देखो y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स t। बस टी। और मान लो कुछ भूल गए हो, आपको कुछ याद नहीं, ये भी कुछ हिंट्स दे रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी को क्या पुट कर दो आप, tan थीटा। तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स t। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos 2 थीटा दैट इज 2 थीटा। मुझे बताओ y की वैल्यू भी 2 tan इनवर्स t आ गई क्या? यस सर। देयरफॉर dy by dt क्या हो जाएगा बेटा, 1। 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। dy by dt क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dt अपॉन dx by dt। इज दैट क्लियर? मीन्स 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज 1। तो आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में
आ गया होगा कि dy बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कर सकते हो आप लोग। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैं होमवर्क रख रहा हूँ, चलेगा? यस सर। किसी यस सर। प्रॉब्लम है तो बताओ। सेम मेथड 4-5 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं तुम्हें, एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग करोगे, है ना? तो यहाँ पे कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ आप लोग। नो सर। पक्का? सर वो टू थीटा है, ई रेस टू 0 है फर्स्ट, मतलब थीटा सेकंड थीटा के थीटा 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 बेटा, थीटा सभी जगह पे थीटा। ई रेस टू 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तो 1 हो जाएगा वो, है ना? यस आगे बढ़े। चलो कुछ ना होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, है ना? और फिर नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। Question is, if x square plus y square equals to t minus 1 by t and x raised to 4 plus y raised to 4 equals to t square plus 1 by t square, then find dy by dx. Clear to both of you? Then find dy by dx. तो चलेगा? Similarly, one more question. If x cube plus y cube equal to t minus 1 by t and x raised to 6 plus y raised to 6 equals to t square plus 1 by t square, then find dy by dx. Is that clear? समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये करना है, ये क्लियर है क्या? कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, कर नो लोगे, सर। है ना? अब ना ये होमवर्क है, दोनों ट्राई करना आप लोग। अब मैं एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, है ना? तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूँ। फाइंड dy by dx, find dy by dx if first option is x equals to a sec theta, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, आप लोग बिल्कुल करके देखना, y इक्वल टू b tan theta. सेकेंड वन, x इक्वल्स टू log t base e plus sin t and y इक्वल्स टू e raised to t plus cos t. बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप सभी से बनने ही चाहिए, है ना? नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज, x इक्वल्स टू 2 cos t minus cos 2t, comma y equals to 2 sin t minus sin t. क्लियर है कवल एनानागा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एज ए होमवर्क आप लोगों को दिए हैं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप लोग ट्राई करोगे और बनेगा। अगर कुछ नहीं बनता है तो फिर अपन उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं एक दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या देखने वाले हैं अपन? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन।
इज दैट क्लियर? देखो Yes, sir. आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन का। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another function. Clear to both of you? Derivative of one function with respect to another function. This is similar as पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोल सकते हो आप? ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग बोल सकते हो। जैसे मान लो मैंने दो फंक्शन कंसीडर कर दिए एफ एक्स और जी एक्स, लाइक दैट। लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड z इक्वल्स टू जी एक्स, है ना। देखो पहला फंक्शन क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है, दूसरा क्या है, जी एक्स, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। मींस हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, dy बाई dz, यही ना। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x मींस डेरिवेटिव ऑफ, या फिर ऐसा सपोज करो, e और भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सॉरी y और z कंफ्यूजिंग है, तो मैंने fx और gx को u and v सपोज कर दिया। मींस वी आर ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ du by dv। गॉट इट? कवल एंड अनागा मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड फंक्शन। तो देखो ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, u किस पे डिपेंड कर रहा है, f ऑफ x मतलब x पे। सबसे पहले मैं du by dx फाइंड आउट कर लेता हूँ। गॉट इट? ऐसे ही। और dy एज इट इज जैसा पैरामेट्रिक फॉर्मूला बेटा फाइंड आउट करते थे, क्योंकि u तो आपका u जो है fx है, और fx तो x पे डिपेंड कर रहा है ना। गॉट इट? हेलो। यस सर। और v की वैल्यू देखो gx है, तो आप dv by dx फाइंड आउट कर लो। तो dv by dx क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ gx, दैट इज g dash x। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, du by dv। du by dv को बोल सकता हूँ ना मैं, du by dx अपॉन dv by dx। इज दैट क्लियर? दैट इज f dash x अपॉन g dash x। कर सकते हैं क्या अपन? यस सर। चलेगा, है ना। देखते हैं कैसे होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड एक तो क्वेश्चंस लेते हैं, अपने को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कैसे अप्रोच करना है। देखो यहाँ पे सर तो फिर हम यहाँ पैरामेट्रिक भी लगा सकते एज हैं इट ना? इज पैरामेट्रिक ही है कवर। आप ऐसा बोलो कि इसको पैरामेट्रिक ही बोलो, बट पैरामेट्रिक मतलब इसमें बस क्या है, बोल दिया है कि एक फंक्शन और दो फंक्शन। वहां भी तो वही करते थे ना, दोनों फंक्शन को आप इंडिपेंडेंटली क्या कुछ सपोज कर लेते थे, है ना, एक्स और वाई। यहाँ पे क्या कुछ भी सपोज कर लो आप। देखो ना ऐसा बोला है उसने, लाइक दैट। क्वेश्चन इज फाइंड derivative of one function derivative of first function with respect to another function, first function with respect to क्या बोल रहा है वो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है अपने को, देखो फर्स्ट फंक्शन इज ऐसा कुछ दिया है उसने, e रेज़ टू x, और यहाँ पे ऐसे करके दिया है रूट x। मींस फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा e रेज़ टू x है और सेकंड फंक्शन क्या है तुम्हारा रूट x। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y u इक्वल टू e रेज़ टू x, देयरफॉर du by dx क्या होगा बेटा बताओ, e रेज़ टू x, अगेन v इक्वल टू क्या सपोज कर लो आप, रूट x, देयरफॉर
dv by dx क्या हो जाएगा बताओ? 1 by 2 root x. Am I right? Is that clear to both of you? Therefore dv by dv क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने फर्स्ट फंक्शन टू यू और सेकंड टू वी बोला है, मींस तुम्हें dv by dv चाहिए फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट इज dv by dx अपॉन dv by dx. Is that clear? Means e raised to x upon 2 root x, 1 upon 2 root x, that is e raised to x into 2 root x. Kaval and Anaga, easy है, कर सकते हैं क्या? Hello, hello, Yes, sir. am I audible to both of you? Yes, sir. Yes. Now the second is e raised to 10x is to simply sin x. इसको अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट. देखो कैसे करेंगे. सॉल्यूशन इज, सबसे पहले क्या सपोज कर लोगे आप, लेट u इक्वल टू e रेज टू x. देन क्या करोगे, डिफरेंशिएट. देयरफॉर du by dx क्या हो जाएगा, तो देखो e रेज टू 10x का तो e रेज टू 10x ही होगा, बट 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1. अगेन dv by dx. v किसको सपोज कर लोगे बेटा, sin x. देयरफॉर dv by dx क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज Cos x. cos x. गॉट इट. देयरफॉर अपने को चाहिए क्या, du by dv means du by dx upon dv by dx. dx. क्लियर क्या? देयरफॉर du by dv is equal to e raised to 10x into sec square x अपॉन, बोलो क्या है बेटा, cos x. गॉट इट. इसको अपन बोल रहे हैं क्या, e raised to 10x into sec qx, and this is the final answer. du by dv is equal to e raised to 10x into sec qx. क्लियर क्या, ये समझ में आया? Yes, sir. दिस इज द फाइनल आंसर, है ना. क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो तो वो लेना लगा, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं. थैंक यू बोथ ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू.